محترم حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت پہاڑی کے کھو میں ہوئی، اور جو نمرود نے یہ آرڈر اور حکم جاری کیا تھا نجومیوں سے اس کی خبر، اس تارے کے حوالے سے خبر لینے کے بعد، تو ان کی ولادت پہاڑی کے کھو میں ہوئی، اور ان کی ماں کتنی تکالیف اور مصیبتوں پریشانیوں کو جھیلنے کے بعد ان کی پرورش کی 15 سال تک کا عرصہ، ایک طویل مدت پہاڑی کے کھو میں گزر گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب وہاں سے تشریف لائے، ان کی ماں وہاں سے لے کر آتی ہے، تو انہوں نے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ انسان کا پیدا کرنے والا کوئی پروردگار ہے، کوئی اللہ رب العزت ہے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرتا ہے، جو کھلاتا پلاتا ہے، جو صحت یابی دیتا ہے اور جو بیمار کرتا ہے، جو امیر کرتا ہے، جو غریب کرتا ہے، جو بوڑھا کرتا ہے، جو جوان کرتا ہے، ہر اعتبار سے اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ تو وہاں لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سمجھانے کی کوشش کی اور اپنے دھرم کا پرچار کرنا شروع کیا، اس کی نشر و اشاعت، اس کا ایڈورٹائز کرنے کی کوشش کی۔ تو لوگوں نے ان کی باتوں کو رد کرنا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم لوگوں کو بت پرستی سے جو ہے منع کرنے کی کوشش کی، بت کو پوجنے سے منع کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تو کھلے عام لوگوں کو چیلنج کرتے اور بتوں کے خلاف زبان کھولتے ہی تھے، لیکن وہ بت پرست لوگ وہاں سے قریب، اپنے علاقے سے قریب ایک میلہ لگایا کرتے تھے۔ جب اس میلے میں جانے لگتے تو پہلے اپنے بت خانے میں جاتے، وہاں ایک بڑا بت بنایا تھا اور بقیہ تمام بت چھوٹے چھوٹے تھے، وہاں جو ہے شیرنی مٹھائی رکھ دیا کرتے تھے۔ مٹھائیاں رکھ دینے کے بعد اپنے بتوں سے ملاقات کر لیتے، اس کے بعد اپنے میلہ کو جاتے، پھر وہاں سے لوٹتے، کہیں بھی جاتے تو ملاقات کر کے جاتے، پھر جب لوٹتے تو پہلے اپنے بت خانے میں آتے، پھر اپنے بت کو دیکھتے، بت کی پوجا کرتے، اس کے بعد پھر اپنے گھر کو لوٹا کرتے تھے۔ لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اس بار لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہا، جو کہ ایک پیغمبر ہیں، جو کہ ایک نبی ہیں۔ نمرود کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم آپ بھی چلیے ہمارے ساتھ میلہ میں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم لوگ بت پرست ہو اور میں تمہارے ساتھ بت خانے جاؤں، تمہارے ساتھ میلے جاؤں؟ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے اور میں ایسا کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گا۔ بہرکیف لوگ اپنے بت خانے گئے، نمرود کے ماننے والے، اس کے بعد وہاں مٹھائیاں چڑھائی، اس کے بعد میلہ کو چلے جاتے ہیں۔ میلہ میں ان لوگوں کا جانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھا کہ یہ موقع بڑا غنیمت ہے، یہ بڑا اچھا موقع ہے، یہ موقع اسی موقع کی تلاش و جستجو میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پہلے سے تھے۔ بس ہاتھ میں ایک کلہاڑا لیا اور کلہاڑا لے کر اس بت خانے پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد بڑے بت کو چھوڑ دیا اور تمام چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ ڈالا۔ کسی کی گردن توڑ دیا، کسی کے سر پھوڑ دیے، کسی کے بازو کاٹ دیے، کسی کے جسم کو توڑ پھوڑ کر تہس نہس کر دیا، بالکل وہاں کا ماحول خراب کر دیا۔ اس کے بعد جو ایک بڑا بت تھا اس کی گردن میں کلہاڑے کو لٹکا دیا اور اس بت خانے سے چلے آتے ہیں۔ جب وہ بت پرست لوگ، نمرود کے ماننے والے، وہ بت خانے میں جانے آنے والے، مٹھائیاں چڑھانے والے اور اس وقت کے یہ بے دھرم لوگ جب اپنے میلہ سے لوٹتے ہیں تو لوٹنے کے بعد پہلے اپنے بت خانے میں جاتے ہیں۔ جیسے ہی بت خانے میں پہنچے، دیکھا یہاں کا ماحول تو عجیب ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا گیا ہے، صرف ایک بڑے بت کو چھوڑا گیا ہے اور اس کی گردن میں کلہاڑی لٹکا دی گئی ہے۔ آخر ایسا حال کس نے کیا ہے؟ تو اس میں ایک چالاک شخص تھا، اس نے کہا ہو نہ ہو یہ حضرت ابراہیم کا کام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ روئے زمین پر حضرت ابراہیم ہی ایک ایسا فرد واحد ہے جو ہمارے بت کے خلاف کھلم کھلا چیلنج کرتا ہے اور اسے نہ ماننے کی بات کرتا ہے، اس کی پرستش نہ کرنے کی بات کرتا ہے۔ لہٰذا ابراہیم سے اس کے حوالے سے پوچھا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتشریف لاتے ہیں، دربار لگا ہے، بادشاہ نمرود جلاد بھی موجود ہے، اس کے ماننے والے، اس کے وزیر، اس کے مشیر، سب کے سب موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے یہ سوال کیا گیا کہ بتاؤ یہ حال کس نے کیا ہے جبکہ ہمارے بتوں کے خلاف تم ہی زبان کھولتے ہو نہ ہو یہ تمہارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حکمت بھری بات دیکھیے اور ذرا ملاحظہ تو فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا
कि देखो ये बड़े बुत की गर्दन में कुल्हाड़े लटके हुए हैं, छोटे छोटे बुतों को तोड़ दिया गया है। हो सकता है कि इन बुतों ने आपस में लड़ाई झगड़ा कर लिया हो और इस बड़े बुत ने सोचा हो कि ये छोटे छोटे बुत हमें डिस्टर्ब करते हैं और हमें मुसीबतों में डालते हैं। लोग आएंगे हमें पूजेंगे, लोग आएंगे हमारे पास मिठाइयाँ चढ़ाएंगे। ये छोटे छोटे बुत हैं, लोग इनको भी पूजते हैं, लोग इनके यहाँ भी मिठाई चढ़ाते हैं, मुझे डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए बड़े बुत ने हो सकता है इन सबों को तोड़ फोड़ दिया हो। ज़रा आप बड़े बुतों से पूछ लो। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपना प्यारा जुमला फ़ौरन अटैच करके और इन जुमलों से मुत्तसिल करके ये बताया कि अगर ये बड़े बुत जवाब नहीं देते हैं तो इन छोटे बुतों से ही पूछ लो कि इन्हें किसने तोड़ा है, इन्हें इनके सर को किसने फोड़ा है, इनके हाथ और बाजू को किसने काटा है, इनके जिस्म का हाल इतना बुरा किसने किया है। इन्हीं बुतों से पूछ लो। तुम तो इनकी परस्तिश करते हो, तुम तो इन्हें पूजते हो, तुम तो इन्हें खुदा मानते हो, तुम तो इनकी बारगाह में मिठाइयाँ, इनके पास मिठाइयाँ चढ़ाते हो, इन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते। अब वो नमरूद घबरा गया, उसके मानने वाले हैरान व परेशान हो गए। अब नमरूद हल्की आवाज़ में, कपकपी आवाज़ में, थरथराती हुई आवाज़ में कहता है कि इब्राहीम, तुम्हें तो मालूम है ना कि ये बुत बोलते नहीं हैं, तुम्हें तो मालूम है ना कि ये बुत का हम कलाम नहीं होते हैं, तुम्हें तो मालूम है ना कि ये बुत जो है ज़ुबान नहीं खोलते हैं। बस इसी मौके की तलाश में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम थे। ये अल्लाह का पैगम्बर रूए ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का प्रचार करने के लिए फ़ौरन सीना तान के खड़ा हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जवाब देते हैं कि अब जब तुमने ये मान लिया कि ये बता नहीं सकते, ज़ुबान नहीं खोलते, तो तुम इनकी पूजा क्यों करते हो, तुम इन्हें मानते क्यों हो, तुम इनके यहाँ मिठाइयाँ क्यों चढ़ाते हो, तुम इनके सामने सजदे क्यों करते हो और तुम इन्हें मानने पे मजबूर क्यों हो जब ये अपना हाल बयान नहीं कर सकते। इन्हें किसने तोड़ा, इनके सर को किसने फोड़ा, इनके जिस्म का बुरा हाल किसने किया और इन्हें तोड़ फोड़ किसने किया, ये कोहराम किसने मचाया। जब ये नौयत बयान ये नहीं कर सकते तो तुम इनके सामने सजदा करना छोड़ दो, आ जाओ उस परवरदिगार की जानिब जो पूरी कायनात का पैदा करने वाला है, जो पूरी कायनात का खिलाने पिलाने वाला और पालनहार है। इतना सुनना था। आमतौर से आपने देखा होगा दुनियावी रूल्स और सिस्टम, ज़ाब्ते, तरीक़े, रवैये भी ये हुआ करते हैं कि लोग जो बादशाह होते हैं, जो बड़े दरबारी होते हैं और जो अमीर हुआ करते हैं, जो बड़े लोग हुआ करते हैं, जब उनकी बारगाह में आप कुछ जवाब दीजिएगा ना और उनके पास कोई जवाब ना हो, जब वो लाजवाब हो जाया करते हैं तो फ़ौरन अपने मानने वालों को ऑर्डर देते हैं कि इन्हें मार दो, इन्हें गिरफ्तार कर लो, इन्हें तोड़ फोड़ दो, इन्हें हथकड़ी डाल दो, इन्हें जो है बेड़ियाँ डाल दो और इन्हें जेल में डाल दो, इन्हें जला डालो, इन्हें काट डालो। इस तरह के ऑर्डर और फरमान जारी किया करते हैं। बस नमरूद समझ गया कि अब कोई रास्ता नहीं है। अपने मानने वालों को करीब बुलाया और कहा इससे निपटने का और कोई रास्ता नज़र नहीं आता, इसे कैद खाने में डाल दो, इसके हाथ में हथकड़ी डाल दो, इसके पैर में बेड़ियाँ लगा दो। अब इन्हें कैद कर दिया गया। किसे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को, और इनको जलाने की प्लानिंग की गई। अब जलाया कैसे जाएगा? ये तो अपने वक्त का पैगंबर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का प्रचार करता है, किसी से डरता नहीं है। अचानक अब उन लोगों ने ये प्लान में रास्ता और नतीजा निकाला कि आग लगाई जाए एक चार दीवारी बना के और इतने दूर में लगाई जाए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को उसमें डाल देने के बाद निकलने का कोई रास्ता हमवार ना हो सके। बहरकैफ चार दीवारी के अंदर कई किलोमीटर में, कई 100 किलोमीटर में आग भड़का दी गई। लोग जगह जगह से लकड़ियां जमा करते रहे। उस आग को जो है भड़काया गया। उसके बाद उसकी तपिश इतनी है कि अगर कोई उसके करीब जाए तो उसकी तपिश से डर से लौट के वापस आ जाता है, भाग जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को उसमें डालने की कोशिश की गई, लेकिन जो लेके उस आग के करीब जाता है उसकी तपिश इतनी है और उसके जोर इतने हैं, उसका जो है तापमान इतना है कि लोग उसके दूर ही से लौट कर भाग जाते हैं। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डालने के लिए अब जो है एक मिंजनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जो आग में डालने वाला आला होता था उस वक्त। अब वो मिंजनीक के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को, पैगंबर को उसमें डाला जाएगा, अल्लाह के नबी को उसमें डाला जाएगा। लेकिन उससे पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम सैयदुल मलाइका रूहुल अमीन तशरीफ़ लाते हैं। कहते हैं इब्राहीम कुछ मदद की ज़रूरत है, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपका पैगाम पहुँचा देंगे। आप ज़रा बोलिए तो सही, आपको क्या मदद की ज़रूरत है, आपको कौन से हेल्प की ज़रूरत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा जिब्रील तुम्हें मालूम है ना ये आग भड़काने का मिजाज इनके दिमाग में किसने दिया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। ये आग भड़कवाने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे बचाना चाहता होगा तो बचाने की कोई सूरत वही इख्तियार करेगा, वही रास्ता निकालेगा। और अगर मुझे जलाना ही मकसूद है तो एक इब्राहीम क्या, ऐसे हज़ारों इब्राहीम इस आग में जलने के लिए तैयार है। जिब्रील अमीन लौट जाते हैं, मिंजनीक के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को उसमें डाल दिया जाता है। लेकिन
اللہ रब्बुल इज़्ज़त का फरमान होता है, ऐ जिब्रील इस वक्त अपनी जगह पर रहने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन जाओ, जिस आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को डाला जा रहा है उसे बिल्कुल बागीचे बना दो, उसे ठंडा कर दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल्ना या नारुकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, कि ऐ आग इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली ठंडी। यानी ठंडी के मामले में आपको मैं ये बता दूं कि अगर फ्रिज में जो है एसी वाले में ऊपर वाले डब्बे में अगर पानी रख दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा काफ़ी ठंडा हो जाता है, उसे पीने में भी तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तो आपको कंबल या लिहाफ रज़ाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं कहा सिर्फ आग से कि ठंडी हो जा, मतलब वो ठंडी नहीं जिससे इब्राहीम को तकलीफ़ भी हो, बल्कि वो ठंडी कुल्ना या नारुकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, वो ठंडी जिसमें सलामती हो, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को खुशी महसूस हो, उन्हें किसी तकलीफ़ का महसूस ना हो। इतना कहना था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऑर्डर देता है और वो जो है आग को बिल्कुल बागीचा कर देते हैं, जन्नतुल फिरदौस का माहौल वहाँ तैयार हो जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को उसमें डाल दिया गया। अब चारों जानिब से आग तो भड़क रही है लेकिन बीच में जन्नत का माहौल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसमें आराम फरमा रहे हैं। अब ये दुश्मन नमरूद अपने मानने वालों के साथ ये सोच रहा है कि हज़रत इब्राहीम तो जल चुके होंगे, वो तो मिट चुके होंगे, वो तो खत्म हो चुके होंगे, वो तो जल के राख हो चुके होंगे। 1 घंटा और 1 दिन का वक्त नहीं गुजरा, 1 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन नहीं, बल्कि कंटिन्यू 40 दिन तक आग भड़कती रही। आखिर में नमरूद ने ये सोचा कि अब तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल के राख हो चुके होंगे, वो लोग वहाँ से लौट जाते हैं। लेकिन 40 दिन के बाद जब आग ठंडी पड़ती है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम उस आग से ऐसे खुशहाल हो के लौट रहे हैं जैसे किसी आप अल्लाह वालों के लिए रास्ते में फूल डाल दिया करते हैं। जैसे कोई आने वाला इतने आराम और चैन और सुकून से आ रहा है, जैसे वो जन्नत से निकल के आ रहा हो, जैसे वो जन्नत का सैर करके आ रहा है, जैसे वो जन्नत का सफ़र करके आ रहा है, जैसे वो जन्नत के बागीचे से निकल रहा है, जैसे वो जन्नत के खाने खा के आ रहा है। इतना खुशहाल हो के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम वहाँ से लौट कर आते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कितनी तकालीफ, मुसीबतों, परेशानियों को झेलने के बाद अपने धर्म का उन्होंने प्रचार किया और हमारे खुद हम तक जो दिन पहुंचा है मज़हब इस्लाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत, इस धर्म की जब हकीकत का आप मुआयना और जायज़ा करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इमाम हसन हुसैन ने करबला की सरजमीन पे जब गर्दन कटवाई है और कुर्बानियाँ पेश की हैं, तब जाके मज़हब इस्लाम हम तक सही सलामत पहुँचा है। इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी के वो अहमद रज़ा ने गालियाँ सुनी है, तब हम तक मज़हब इस्लाम पहुँचा है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने बहुत तकालीफ बर्दाश्त की है, तब आज हम कहीं ना कहीं उनके तुफ़ैल और सदक़े में हम ईमान वाले हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके पास अगर ईमान की दौलत है तो पूरी दुनिया हेच है आपकी नज़रों में होनी चाहिए, इसकी कोई हैसियत नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मकान, इमारत, कोठे, ज़मीन व जायदाद, गाड़ी घोड़े, रुपया पैसा या बड़े बड़े लोग, सबको आप पैर की ठोकर में रखिए। अगर ईमान की दौलत आपके पास है तो आप ये समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात में सबसे बड़ी दौलत से आपको माला माल फरमा दिया है।